बंगाल मिरर प्राइम टाइम पर देखे खबरें फटाफट। अब चंद मिनटों में जाने शिल्पांचल का हाल। आइए शुरू करते हैं आज की खबरों के साथ। आसनसोल के कुमारपुर स्थित यूनाइटेड स्पिरिट्स कारखाने पर बंदी की तलवार लटक रही है। पिछले 7 महीनों से उत्पादन बंद है। ठेका श्रमिकों को वेतन का भुगतान नहीं किया जा रहा है, वहीं अस्थायी कर्मियों को बिना काम के वेतन दिया जा रहा है। दूसरी ओर कंपनी ने फैक्ट्री परिसर में मजदूरों के आवास भी खाली करा दिए हैं। उन आवासों को तोड़कर जमीन को समतल कर दिया है। साथ ही फैक्ट्री से तमाम कलपुर्जे, मशीनें, लेबर सहित अन्य चीजों को भी लेकर चली गई है। इस फैक्ट्री में 145 अस्थायी और 110 मजदूर कैजुअल है। वर्तमान परिस्थिति में श्रमिकों में भय का माहौल है कि कहीं न कहीं फैक्ट्री के मैनेजमेंट उनको ठगने का कार्य कर रही है। सीटू नेता मुक्तेश्वर बौरी ने कहा कि मोदी और ममता सरकार एक ही सिक्के के 2 पहलू है। उन्होंने कहा, जिस तरह फैक्ट्री को पूर्ण रूप से खाली करवा लिया गया, आवास खाली करवा लिए गए, अस्थायी मजदूरों के वेतन बंद कर दिए गए, उससे यह स्पष्ट है कि ये फैक्ट्री बंद होने के कगार पर है। वहीं INTTUC जिला अध्यक्ष अभिजीत घटक ने कहा कि घटना की जानकारी है, इसे लेकर राज्य के श्रम विभाग को भी सूचित किया गया है। जल्दी प्रबंधन के साथ श्रम विभाग के मध्यस्थ में बैठक होगी। कंपनी का कहना है कि यहां उत्पादन लागत ज्यादा है, इसलिए बंद कर रखा गया है, लेकिन इस तरह से कारखाने को बंद रखना उचित नहीं है। कारखाना काफी पुराना है। वहीं कांग्रेस नेता प्रसेनजीत पोतंडी का कहना है कि एक तरफ मोदी तो दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी करोड़ों रुपए खर्च कर विश्व स्तरीय व्यापार मेला लगवाकर विदेशी कंपनियों को देश में निवेश करने के लिए निमंत्रण कर रहे हैं। ऐसे में उनको देश और राज्य में पहले से मौजूद फैक्ट्रियों की बदहाली नहीं दिखाई दे रही। भाजपा के राज्य स्तरीय नेता कृष्णनंदू मुखर्जी ने भी मुख्यमंत्री पर निशाना साधते हुए कहा कि राज्य में फैक्ट्रियों का एक के बाद एक बंद होना कोई नई बात नहीं है। जब तक राज्य में टीएमसी की सरकार रहेगी तब तक राज्य में बदहाली बनी रहेगी। ना गत कয়েক মাস ধরে এখানে প্রোডাকশন বন্ধ আছে, এটা আমাদের কাছে খবর আছে, এবং যারা অস্থায়ী কর্মচারী তাদেরকে একটা ডেলি পেমেন্ট করছেন, কিন্তু কাজ তারা পাচ্ছে না। আমরা ইতিমধ্যেই কর্তৃপক্ষের সাথে কথা বলেছি। এটা একটা বিদেশি কোম্পানি DIGO বলে, তারা এই কারখানাটা চালায়, এবং তাদের যে নীতি আছে, যে পলিসি, সেই পলিসির কারণেই হয়তো তাদের ইন্টারনাল ম্যাটারে এই কারখানার প্রোডাকশনটা বন্ধ আছে। তাদের বলছে আমাদের এখানে যে কস্ট অফ প্রোডাকশন অনেক বেশি। আমরা সেই ব্যাপারে আলোচনা করেছি, এবং আমরা ইতিমধ্যেই আমাদের রাজ্যের যে শ্রম দপ্তর সেখানেও আমরা জানিয়েছি। আমাদের যারা শ্রমিকরা রয়েছেন তারা সেখানে আবেদন করেছেন যে এইভাবে দীর্ঘদিন ধরে কারখানার প্রোডাকশন বন্ধ করে রাখা হয়েছে। তো আমরা আশা করব যে কয়েকদিনের মধ্যে আমরা কর্তৃপক্ষ এবং শ্রমিক সংগঠনের মধ্যে একটা আলোচনা হবে, সেখানে মধ্যস্থতা করবেন আমাদের শ্রম দপ্তর, এবং একটা রাস্তা আমরা বার করতে পারবো আশা করছি। অস্থায়ী শ্রমিকরা তার আশঙ্কা প্রকাশ করছে হয়তো কারখানাটা বন্ধ হতে পারে। সেটা আমাদেরও একটা আশঙ্কা আছে, কিন্তু এটা দীর্ঘদিন ধরে এই অঞ্চলে এই কারখানা রয়েছে। এর আগে কেরু কোম্পানি নাম ছিল, পরবর্তীকালে এটা ইউনাইটেড স্পিরিটস হয়, এবং DIGO বলে একটি কোম্পানি এটা অধিগ্রহণ করে। আমরা যে কোনো উপায়ে যাতে এই কারখানা চালু থাকে সেই বিষয়ে আমরা অবশ্যই কর্তৃপক্ষের সাথে কথা বলে এই কারখানা যাতে চালু থাকে সব রকমভাবে সহযোগিতা আমরা করব। খুব দুর্ভাগ্যজনক বিষয়, আমি ওটা শুনেছি। যেমন কোটি কোটি টাকা খরচ করে বিজনেস সামিট করা হচ্ছে, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী করছেন, বিভিন্ন জায়গা থেকে শিল্প উনিনাকে নিয়ে আসছেন, প্রত্যেক বছর হাজার হাজার কর্মসংস্থান হচ্ছেন, উনি সব যে পরিসংখ্যান দেয় সেটা দেখা যায়। হ্যাঁ, এই ফল নতুন সংযোজন হবে একটা,
এই ইউনাইটেড স্পিরিট বন্ধ হয়ে যাবে, বন্ধ হওয়ার মুখে। আর সবচেয়ে দুর্ভাগ্যজনক বিষয় হচ্ছে আমাদের মাননীয় শ্রমমন্ত্রীর বাড়ির থেকে 500 মিটার দূরত্বে এই ফ্যাক্টরি, এবং সেখানের যে ওই ক্যাজুয়াল স্টাফদের ইউনিয়ন থেকে শুরু করে যা যা কিছু হয়, ওই ওনারই একজন রিলেটিভ ওই ইউনিয়নের সঙ্গে যুক্ত, ইউনিয়নটা উনি কন্ট্রোল করেন। কীভাবে বন্ধ হয়ে যাবে, কীভাবে হবে? ওনারা ভালো বলতে পারবেন যে কেন এই জিনিস হচ্ছে। ওখানে তো সব তৃণমূল কংগ্রেসেরই লোকজন, ইউনিয়ন থেকে শুরু করে সব কিছু। তারা শ্রমিকের স্বার্থে কথা বলবে না নিজের স্বার্থে কথা বলবে, সেটা তো তাদের ব্যাপার। আপনারা দেখছেন, নতুন করে বলবার কিছু নেই। সারা পশ্চিমবঙ্গে কি হচ্ছে, শিল্পর নাম শুনলে ব্যবসায়ীরা পালিয়ে যাচ্ছে, অন্যান্য স্টেটে গিয়ে তারা শিল্প স্থাপন করছে। হ্যাঁ, এখানে এত তোলাবাজির ব্যাপার, এত লোকজনকে বখরা দিতে হয়, আর কেউ এখানে শিল্প স্থাপন করছে না, সব হাত জোর করে পালাচ্ছে। আসে বিজনেস সামিট হয়, সেখানে আসে বক্তব্য রাখে, বড় বড় কথা বলে, এত ইনভেস্টমেন্ট করবো, এত করব, কিচ্ছু হয় না। পশ্চিমবঙ্গের খুবই দুরবস্থা। এই তৃণমূল সরকার থাকলে এই হবে। এর মানে আমাদের এখানের যারা শিক্ষিত বেকার থেকে শুরু করে যারা টেকনিক্যালি যারা মানে আপনার কি বলবো স্মল স্কেল ইন্ডাস্ট্রিতে যারা কাজ করে লেবারের, সবার খুব খুব বাজে অবস্থা। এই সরকারটা না যাওয়া পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গের ভবিষ্যৎ খুবই अंधकार। आसनसोल उत्तर थाना क्षेत्र के दक्षिण धातका इलाके के इमली तालाब के पास जैक से एक मकान को ऊंचा किए जाने को लेकर विवाद पैदा हो गया। पड़ोसी काजल माझी ने आपत्ति जताई और नगर निगम की अनुमति के बिना कार्य करने का आरोप लगाया। साथ ही उन लोगों ने भवन के ध्वस्त होने पर उनकी जमीन पर मलबा गिरने की आशंका जताई। वहीं मकान के मालिक कुणाल किशोर ने कहा कि ये निर्माण किसी भी तरह से अवैध नहीं है। उन्होंने कहा कि नगर निगम से उन्होंने अनुमति नहीं ली है, लेकिन उन्होंने स्थानीय पार्षद उत्पल सिन्हा से अनुमति ली है। उन्होंने बताया कि पुलिस के अधिकारी भी आए थे और उन्होंने थाना के प्रभारी से मुलाकात करने के लिए कहा। उन्होंने थाना प्रभारी से मुलाकात की और उन्होंने सारी बातें थाना प्रभारी के सामने रख उन्होंने भी उन्हें काम जारी रखने का ही आदेश दिया है। आसनसोल एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के जरिए बेरोजगार युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराया जाता है। आज पेटीएम कंपनी ने जिन बेरोजगार युवाओं ने आसनसोल एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में अपने नाम का पंजीकरण करवाया हुआ था, उनका इंटरव्यू लिया। इसके पहले भी यहां से काफी युवक नौकरी पा चुके हैं। इस बारे में एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज अधिकारी अनुज चक्रवर्ती ने क्या कहा, सुने यहाँ। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের লেবার ডিপার্টমেন্টের অধীন আমরা এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জ, আমাদের একটা ডাইরেক্টরেট, তারা প্রতি বছরই জব ড্রাইভ করে থাকে। অর্থাৎ আমাদের কাছে যারা রেজিস্টার্ড আনএমপ্লয়েড ইউথ আছেন তাদের জন্য আমরা জব ড্রাইভ করছি। এতদিন ধরে সরকারি দপ্তরে নাম পাঠানো হচ্ছিল আমাদের মাননীয় মন্ত্রী মলয় ঘটকের উদ্যোগে। আমরা বিগত 2 বছর ধরেই বিভিন্ন বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে আমরা নাম পাঠিয়ে চলেছি। আমরা বিভিন্ন বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে তাদের কী ধরনের লোক দরকার তার একটা আমরা রিকুইজিশন নিই। সেই রিকুইজিশন তারা আমাদের কাছে পাঠালে আমরা আমাদের কাছে সেই ধরনের ছেলেপুলেদেরকে ডেকে আমরা এমপ্লয়ারের সামনে একত্রিত করে দিই। এমপ্লয়াররা তাদেরকে ইন্টারভিউ নেন, নিয়ে সেখান থেকে তার যে সমস্ত ক্যান্ডিডেটকে তারা সিলেক্ট করেন। এই বছর আমরা জুলাই নির্বাচন শেষ হয়ে যাওয়ার পরে 2024 সনের লোকসভা নির্বাচনের পর থেকে আমরা কাজ শুরু করেছি। এখন অবধি আমরা প্রায় 20 জন এমপ্লয়ারকে আনতে পেরেছি বিভিন্ন সময়ে, এবং এই 20 জন এমপ্লয়ারের কাছে আমাদের কাছে প্রায় 1100-র মতন ক্যান্ডিডেট যাদেরকে আমরা এই 20 জন এমপ্লয়ারের সামনে হাজির করেছিলাম, এবং তাদের মধ্যে এমপ্লয়াররা তাদেরকে ইন্টারভিউ নিয়ে 318 জন ক্যান্ডিডেটকে তারা চয়েস করেছিল, যাদেরকে তারা অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার দেওয়ার কথা দিয়েছিলেন, এবং দেওয়ার পরে এখন অবধি 126 জন ছেলেমেয়ে আসানসোল এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জ থেকে তারা চাকরি পেয়েছেন। हीरापुर थाना अंतर्गत बनपुर के करीब 50 वर्ष पुराने बर्थौल फ्री प्राइमरी स्कूल भवन में अभिभावकों ने आज ताला जड़कर विरोध प्रदर्शन किया। वो लोग स्कूल के जर्जर भवन की मरम्मत की मांग कर रहे थे। आंदोलनकारियों का कहना है कि स्कूल भवन की हालत काफी खराब हो चुकी है। नियमित रखरखाव के अभाव में छत का प्लास्टर कभी भी गिर सकता है, जिससे उनके बच्चे गंभीर रूप से घायल हो सकते हैं। लगातार स्कूल प्रबंधन से अनुरोध किया गया है कि स्कूल भवन की मरम्मत करवाई जाए, लेकिन ऐसा नहीं किया गया है। इसी कारण स्कूल भवन में ताला जड़ दिया गया।
अभिभावकों ने स्कूली छात्रों के साथ स्कूल गेट के बाहर अपनी मांगे पूरी करने के समर्थन में नारेबाजी भी की। अभिभावकों के प्रदर्शन के दौरान स्कूल के सहायक शिक्षक राम मोहन मुखर्जी मौके पर पहुंचे और उन्होंने अभिभावकों को समझाने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि वो भी मानते हैं कि अभिभावकों की बात सही है, लेकिन इस तरह से स्कूल में ताला लगा देना सही बात नहीं है। पश्चिम बर्धमान जिले से 1000 श्रद्धालुओं को विशिष्ट समाज सेवी कृष्णा प्रसाद द्वारा महाकुंभ ले जाने की व्यवस्था की जा रही है। जो भी श्रद्धालु जाने को इच्छुक है वो जल्द से जल्द कल्ला मोड़ स्थित उनके कार्यालय में संपर्क करें या फिर दिए गए हेल्पलाइन नंबर 9933016505 या 9933020574 पर भी संपर्क कर पंजीकरण कर सकते हैं। पश्चिम बंगाल मध्य शिक्षा परिषद की माध्यमिक 10वीं परीक्षा आगामी 10 फरवरी से शुरू हो रही है। शिल्पांचल में आसनसोल बस एसोसिएशन और आसनसोल मिनी बस एसोसिएशन ने परीक्षार्थियों को परीक्षा केंद्रों तक आने जाने के लिए निःशुल्क यात्रा कराने की घोषणा की है। दोनों एसोसिएशन की ओर से बिजोन मुखर्जी एवं सुदीप रॉय ने संयुक्त रूप से डीएम, सीपी एवं अन्य संबंधित अधिकारियों को पत्र लिखकर कहा कि माध्यमिक परीक्षाएं 10 फरवरी 2025 से शुरू होगी। ये परीक्षा 22 फरवरी 2025 तक जारी रहेगी। अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए हमने संयुक्त रूप से निर्णय लिया है कि आसनसोल अनुमंडल के अंतर्गत आने वाले उन क्षेत्रों से जहां बस, मिनी बस सेवाएं उपलब्ध है, विभिन्न परीक्षा केंद्रों तक जाने वाले अभ्यर्थी बस, मिनी बस से पूरी निःशुल्क यात्रा कर सकेंगे। इस स्थिति में परीक्षार्थी को अपना प्रवेश पत्र, एडमिट कार्ड अपने साथ रखना होगा। इंडिया पावर द्वारा सृष्टिनगर के सेंट्रम मॉल में 6वें कारीगरी मेला का आयोजन किया गया है। शुक्रवार की शाम राज्य के श्रम एवं कानून मंत्री मलाय घटक, इंडिया पावर के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सोमेश दास गुप्ता, आरके मिशन आसनसोल के सचिव स्वामी सोमात्मानंद जी महाराज, सेल आईएसपी के अधिकारी, अन्य अतिथियों ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर उद्घाटन किया। ये मेला 3 दिनों तक चलेगा। हालांकि मंत्री ने इसे 7 दिनों तक करने का सुझाव दिया। देखুন, এর আগে এটা 6ম বর্ষ বোধহয় কারিগরি মেলা 6th ইয়ার। এর আগে 5টা বছর ধরে এই ঠিক উল্টো দিকে বিল্ডিং এর নিচে এই কারিগরি মেলাটা হতো। আমি কিন্তু প্রতিবারই এসেছি এবং একটা কথা আমি দাশগুপ্ত সাহেবকে বলতাম যে দাশগুপ্ত সাহেব এটাকে আর একটু বড় করে করা যাক না, একটু বড় যদি করা যায় তাহলে আমাদের এখানকার লোকাল যারা আর্টিসিয়ান আছেন, লোকাল আর্টিস্ট যারা আছেন, আশেপাশের জেলার যারা আছেন, যারা সারা বছর ধরে তাদের বিভিন্ন পণ্যগুলো তৈরি করেন, তাদেরও বিক্রি করার একটা জায়গা হবে। আমরা এখানে আসানসোল উৎসব করি, হাজার হাজার মানুষ আসেন, সেখানেও কিছু স্টল হয়, কিন্তু পিওরলি কারিগরি মেলা যদি হয়, যেটা খালি যারা কারিগর তাদের জন্যই এই মেলাটার উৎসর্গ করা যায়, তাহলে কিন্তু এই মেলার দিনের পর দিন অনেক বেশি মানুষের চাহিদা বাড়বে। আমি মিস্টার ঝা বক্তব্য রাখার সময় বলছিলেন যে আমি বাংলাতে নয় হিন্দিতে বলবো। তো আমরা যে শহরটাতে বাস করি, আমরা কলকাতাকে বলি সিটি অফ জয় আর আসানসোলকে বলি সিটি অফ ব্রাদারহুড। তো আসানসোল শহরটাই হচ্ছে সিটি অফ ব্রাদারহুড। এবং সবথেকে যেটা বড় কথা, আমরা অনেক সময় দুজন অচেনা বাঙালি হিন্দিতে কথা শুরু করার পরে বুঝতে পারি যে দুজনেই আমরা বাঙালি, পরে আমরা তখন বাংলাতে কথা বলি। তো এই ধরনের একটা কালচার আমার মনে হয় ভারতবর্ষের একটা মানে অন্যতম শহর যেটা আসানসোলে আমাদের আছে। कल्चरल एंड लिटरेरी फोरम ऑफ बंगाल की तरफ से आयोजित 4 दिवसीय इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का
आज समापन हो गया। यहाँ पर बांग्ला फिल्मों की प्रसिद्ध अभिनेत्री ममता शंकर मुख्य रूप से उपस्थित थे। उन्हें आज लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। इस मौके पर पूर्व मेयर जितेंद्र तिवारी, विधायक अग्निमित्रा पाल, बप्पा चैटर्जी, चैताली तिवारी सहित संस्कृति जगत के तमाम बड़े और नामचीन हस्तियां उपस्थित थे। जितेंद्र तिवारी ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा ममता शंकर को पद्मश्री पुरस्कार दिया गया है। इससे ये साबित होता है कि बंगाल कल्चरल एंड लिटरेरी फोरम द्वारा उन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के लिए जो चुना गया है वो बिल्कुल सही है। पृथ्वी टुडू की रविवार सुबह दुर्गापुर प्रोजेक्ट लिमिटेड में वैगन में कोयला निकालते वक्त करंट लगने से मौत हो गई थी। जिला INTTU से पृथ्वी टुडू के परिवार के समर्थन में खड़ा था। मृतक के परिवार को तुरंत अंतिम संस्कार के लिए 5,000 का भुगतान किया गया था। आज मृतक के परिवार को दुर्गापुर प्रोजेक्ट लिमिटेड के टाउनशिप स्टेट ऑफिस में 13 लाख रुपए का चेक दिया गया। दुर्गापुर प्रोजेक्ट लिमिटेड अधिकारियों और जिला INTTUC के अध्यक्ष अभिजीत घटक मौजूद थे। इसके अलावा DPL वर्कर्स ऑर्गेनाइजेशन के सचिव दीपांकर लाहा, सेक्रेटरी मेनक मजुमदार भी उपस्थित थे। आसनसोल नॉर्थ थाना इलाके में सरसों तेल की मिलावट की शिकायत पर आसनसोल दुर्गापुर पुलिस के परिवर्तन शाखा EB ने शीतला मोड़ के निकट निकिता ट्रेडर्स में दबिश दी। टीम जांच के लिए सैंपल भी ले गई। सूत्र बताते हैं कि सरसों के तेल की मिलावट की शिकायत पर इन्फोर्समेंट विभाग ने छापा मारा। यहां नामी ब्रांडों के तेल में मिलावट किए जाने की शिकायतें मिल रही थी। इन्फोर्समेंट अधिकारियों ने दुकान में गहन तलाशी ली और सरसों तेल और रिफाइंड तेल के कई नमूने जब्त किए। इन नमूनों को फॉरेंसिक लैब में जांच के लिए भेज दिया गया है। जांच रिपोर्ट आने के बाद ही यह स्पष्ट होगा कि तेल में कोई मिलावट थी या नहीं। रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। वहीं संस्था मालिक इंद्र प्रसाद साव ने मिलावट के आरोपों को सिरे से खारिज किया। उनका कहना है कि उनकी दुकान में पुराने टीनों में तेल भरा जाता था। राजस्थान से सरसों तेल और बर्दवान से राइस ब्रांड तेल लाकर केवल रीपैकेजिंग की जाती थी। किसी भी तरह की मिलावट या मिलावटी तेल की बिक्री नहीं की जाती थी। बंगाल मिरर न्यूज़ देखने के लिए सभी दर्शकों को धन्यवाद। आप हमें अपने सुझाव दे सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पर। हमारा नंबर है 7047958258। हमारा दूसरा नंबर है 7908186164। कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।